لال قلعے کی آخری پہرے داری۔ رات کے 1:47 بج رہے تھے۔ دہلی کا لال قلعہ جو دن سے ہزاروں سیاحوں سے بھرا رہتا تھا اب مکمل خاموش تھا۔ ہوا بھی جیسے رک گئی تھی، صرف دور کہیں کسی زنگ آلودہ دروازے کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آثار قدیم کے محکمے نے اس رات ایک خاص اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ فوٹوگرافر احسن کو قلعے کی ایسے حصوں کی تصویریں لینی تھی جہاں اہم لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ تھے، رامیش اور نہیم۔ نہیم نے چلتے چلتے آہستہ آواز میں کہا، سر ایک بات پوچھوں؟ احسن نے کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں پوچھو۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں رات کے بعد کوئی پہرا بھی دیتا ہے؟ احسن ہنس پڑا، تم لوگ بھی نا ہر پرانی عمارت کے ساتھ بھوتوں کی کہانی جوڑ دیتے ہو۔ رامیش خاموش تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں 15 سال سے یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور ایک بات آج تک نہیں سمجھ سکا، رات 2 بجتے ہی سب پرندے ایک ساتھ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ احسن نے جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے اس کے کیمرے سے خود بخود کلک کی آواز آئی۔ حالانکہ اس نے تصویر نہیں کھینچی تھی، اس نے اسکرین دیکھی۔ تصویر میں وہ تینوں کھڑے تھے، مگر ان کے پیچھے ایک چوتھا آدمی بھی کھڑا تھا، لمبا قد، مغل دور کے سپاہی جیسا لباس اور چہرہ مکمل سیاہ۔ احسن نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیمرے کا گلیچ ہو سکتا ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ مگر اگلے ہی لمحے قلعے کی فضا میں کسی بھاری چیز کی زمین پر گھسیٹنے کی آواز گونجی۔ پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے درجنوں سپاہی ایک ساتھ مارچ کر رہے ہوں۔ رامیش کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، سر یہ آواز ہر سال صرف ایک رات آتی ہے۔ احسن نے پوچھا، کون سی رات؟ رامیش نے جواب دیا، آج کی رات۔ اسی لمحے قلعے کی ایک پرانی دیوار پر سرخ رنگ سے ایک جملہ ابھر آیا، آج پہرا مکمل ہوگا۔ اور اگلے ہی لمحے نہیم اچانک چیخا، سر میرے پیچھے کون کھڑا ہے؟ احسن نے مڑ کر دیکھا اور اس کا خون خشک ہو گیا، کیونکہ نہیم کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی سرخ چمک رہی تھیں۔ نہیم کے پیچھے کھڑا وہ سیاہ سایہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہا اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دھند میں پھیلنے لگا۔ احسن فوراً ٹارچ لے کر وہاں پہنچا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین پر ایک زنگ آلودہ نیزہ پڑا تھا جس پر سوکھے ہوئے خون جیسے سیاہ دھبے تھے۔ رامیش نے نیزے کو دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اسے ہاتھ مت لگانا، احسن نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ رامیش نے آہستہ سے کہا، بوڑھے لوگ کہتے ہیں جو بھی اس نیزے کو چھوتا ہے وہ اگلی رات واپس یہیں آ جاتا ہے، لیکن زندہ نہیں۔ احسن نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے دستانہ پہنا اور نیزہ اٹھا لیا۔ اسی لمحے پورے قلعے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ قلعے کے تمام کبوتر ایک ساتھ اڑ گئے۔ ہوا اچانک یک بستہ ہو گئی اور احسن کے کیمرے کی اسکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ اس پر ایک پرانی ویڈیو چل رہی تھی۔ حالانکہ کسی نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی، ویڈیو میں وہی جگہ نظر آ رہی تھی، مگر موجودہ وقت نہیں بلکہ صدیوں پرانا منظر۔ مغل سپاہی دوڑ رہے تھے، لوگ چیخ رہے تھے، تلواروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر ایک سپاہی جس کے سینے میں نیزہ پیوست تھا سیدھا کیمرے کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، پہرا ادھورا ہے، اور ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ احسن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً نیزہ زمین پر پھینک دیا، لیکن نیزہ زمین پر نہیں گرا، وہ جیسے ہوا میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے نہیم نے چیخ ماری، سر دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں دوڑ کر مرکزی دروازے کی طرف پہنچے، مگر بھاری لوہے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ حالانکہ اسے بند کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاموشی کے چند لمحے بعد قلعے کی لمبی راہداری میں بھاری جوتوں کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ قریب تھی۔ رامیش نے کانپتی ہوئی انگلی سے اندھیری کی طرف اشارہ کیا، سر وہ دیکھیں۔ احسن نے ٹارچ کا رخ ادھر کیا اور اس کی روشنی میں ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ درجنوں مغل سپاہی قطار میں کھڑے تھے۔ سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک شخص آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا تھا، جیسے وہ صرف احسن کو ہی دیکھ رہا ہو۔ احسن کی ٹارچ کی روشنی ان سپاہیوں کے چہرے پہ پڑی، لیکن ان میں سے کسی کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ سب کے چہرے سیاہ
कपड़ों से ढके हुए थे। सिर्फ दरमियान में खड़ा एक शख्स मुख्तलिफ था। उसके लिबास पर गिर्द जमी हुई थी, सर पर पुरानी मुगल टोपी और हाथ में वही जंग आलूदा नेज़ा जो चंद लम्हे पहले गायब हो चुका था। एहसन ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ राहदारी में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी, पहरा मुकम्मल करो। अचानक तमाम सिपाहियों ने एक साथ अपना सर उठाया। उनके चेहरे अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दर्जनों नजरें एक साथ एहसन पर जम गई। उसी लम्हे एहसन का कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वो स्क्रीन देखता है, मगर उसके सामने खड़े सिपाही नजर नहीं आते। स्क्रीन पर सिर्फ वो खुद खड़ा था, अकेला, जैसे उसके साथ कभी कोई था ही नहीं। एहसन ने घबरा कर पीछे देखा। रामेश और नहीम अभी भी उसके साथ खड़े थे, मगर कैमरा में वो दोनों मौजूद ही नहीं थे। नईम ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, मेरे कान के पास कोई मुसलसल कह रहा है, वक्त खत्म हो गया। अचानक राहदारी में मौजूद एक बहुत बड़ी लकड़ी का दरवाजा जो बरसों से बंद था, खुद ब खुद चिड़चिड़ाता हुआ खुलने लगा। दरवाजे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी चंद कदम आगे जाकर गायब हो रही थी। इस अंधेरे में से एक बूढ़ी आवाज आई, जो अंदर आएगा वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। रामेश खौफ से चीखा, सर, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एहसन की नजरें जमीन पर पड़ी। दरवाजे के सामने मिट्टी पर जूतों के निशान बन रहे थे, हालांकि वहाँ कोई चल नहीं रहा था। वो निशान आहिस्ता आहिस्ता एहसन की तरफ बढ़ रहे थे, 1, 2, 3, और फिर अचानक उसके कदमों के सामने आकर रुक गए। एहसन ने नीचे देखा और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि मिट्टी पर आखिरी निशान अभी बन रहा था, मगर उस निशान को बनाने वाला नजर नहीं आ रहा था। एहसन ने लड़ते हुए कदम पीछे खींचे, मगर मिट्टी पर बनता हुआ वो आखिरी निशान भी उसके कदम के सामने आकर रुक गया। चंद लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। उसके बाद राहदारी के आखिर में लगी एक पुरानी दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता नमी फैलने लगी। पहले चंद कतरे, फिर पूरी दीवार, लेकिन वो पानी नहीं था। वो गहरे सुर्ख रंग का माँ था जो दीवार से नीचे बहने लगा। नईम ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये पहले यहाँ नहीं था। उसी लम्हे एहसन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। कोई नेटवर्क नहीं था, फिर भी एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो का उन्वान था, आखिरी पहरेदार। एहसन ने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर वही राहदारी नजर आई, लेकिन तारीख थी 1857। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक एक जख्मी सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंच गई है तो समझ लो दरवाज़ा दोबारा खुल चुका है। उसी लम्हे उसके पीछे अंधेरे से एक लंबा साया निकला और वीडियो अचानक बंद हो गई। एहसन के हाथ पसीने से भीग चुके थे। रामेश ने फौरन कहा, सर, हमें अभी निकलना होगा। वो तीनों मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जहाँ चंद लम्हे पहले राहदारी थी, अब वहाँ सिर्फ एक लंबी तारीख गुजरगाह थी, जैसे किले का नक्शा ही बदल गया हो। नईम ने बेख्तियार पीछे देखा और खौफ से एक चीख निकल गई। तमाम मुगल सिपाही अब उनकी तरफ चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ एक साथ गूंज रही थी, मगर सबसे खौफनाक बात यह थी, उनके कदम ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो चंद इंच फिजा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एहसन ने दौड़ते हुए आखिरी बार पीछे देखा। उसका दिल जैसे रुक गया। सिपाहियों की कतार के दरमियान एक चौथा आदमी भी खड़ा था। वो मुगल सिपाही नहीं था, वो एहसन खुद था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें मुकम्मल स्याह और होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और दूर खड़े असल एहसन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब पहरा तुम्हारा है। उसी लम्हे पूरे कल्हे की तमाम रोशनियां एक साथ बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, दरवाज़ा बंद कर दो। पूरा लाल किला तारीकी में डूब चुका था। एहसन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर रोशनी मामूल से बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। रामेश हाँफते हुए बोला, सर, हम जिस रास्ते से आए थे वो तो यहाँ था। लेकिन सामने एक लंबी तंग राहदारी थी जिसे उन तीनों में से किसी ने पहले कभी ना देखा था। एहसन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो चल रही थी, मगर इसमें सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे थे, एहसन और रामेश। नईम कहीं पर मौजूद नहीं था। एहसन ने हैरत से सर उठाया। नईम तो अभी उनके साथ खड़ा था। उसने फौरन नईम की तरफ कैमरा घुमाया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ खाली राहदारी नजर आ रही थी। उसी लम्हे नईम की आवाज़ आई, सर, मुझे कोई बुला रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की तरफ चलने लगा। रामेश चीखता है, नईम वापस आ जाओ। लेकिन नईम जैसे किसी शहर में था।
वो एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे पे मिट्टी की तह जमी हुई थी और उस पर उर्दू में सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये दरवाज़ा सिर्फ एक बार खुलता है। नईम ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। चिर्र, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में ना कोई फर्नीचर था, ना कोई खिड़की, सिर्फ दीवार पर एक पुराना आईना लटक रहा था। एहसन ने आईने में देखा, अपना अक्स नजर आया, रामेश भी नजर आया, लेकिन नईम आईने में मौजूद नहीं था। एहसन ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, खामोश, बिल्कुल साकित। अचानक उसने सर उठाया। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह हो चुकी थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम बहुत देर से आ रहे थे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ये नईम की आवाज़ नहीं थी, ये कई लोगों की आवाज़ थी जो एक साथ बोल रहे थे। उसी लम्हे आईने में मौजूद एहसन ने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया, हालांकि असल एहसन बिल्कुल साकित था। फिर आईने वाले एहसन ने आहिस्ता से कहा, अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। और आईने के अंदर से एक स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। आईने से निकलता हुआ वो स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता गया, जैसे किसी जिंदा इंसान का हाथ हो। एहसन और रामेश चंद कदम पीछे हट गए। कमरे का दर्जे हरारत अचानक इतना कम हो गया कि दोनों की सांसें धुंध की सूरत में नजर आने लगी। फिर आईने के अंदर से किसी ने एक बार दस्तक दी, दूसरी बार, और फिर तीसरी बार दस्तक के साथ पूरा आईना हिलने लगा। रामेश चीखा, सर यहाँ से भागे, मगर दरवाज़ा जिससे वो अंदर आए थे वो गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पत्थर की दीवारें थी। ऐसे ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहाँ पुरानी ईंटों के दरमियान किसी ने नाखून से एक जुमला खोद रखा था, अगर वो तुम्हारा नाम ले ले तो जवाब मत देना। एहसन अभी ये जुमला पढ़ ही रहा था कि अंधेरे से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, एहसन। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर दोबारा, एहसन। ये आवाज़ बिल्कुल उसके मरूम वालिद जैसी थी। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अब्बू। वो बेख्तियार बोलने ही वाला था कि रामेश ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। नहीं सर, जो भी हो इसे जवाब मत दीजिएगा। उसी लम्हे वो आवाज़ बदल गई। अब वो नईम की आवाज़ थी, सर मैं यहाँ हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाएं। एहसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज़ बिल्कुल हकीकी लग रही थी, लेकिन उसे दीवार पे लिखा जुमला याद आ गया। उसने खामोश रहने का फैसला किया। कुछ ही लम्हों बाद पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर अचानक आईने में दरार पड़ गई। 1, 2, 10 और चंद सेकंड में पूरा आईना बारीक दरारों से भर गया। लेकिन हैरत की बात यह थी, शीशा टूटा नहीं, बल्कि हर दरार के अंदर एक आंख नजर आ रही थी। दर्जनों आंखें जो सिर्फ एहसन को घूर रही थीं। अचानक सब आंखें एक साथ बंद हो गईं और आईने पर खून जैसे सुर्ख हरूफ उभरने लगे। पहरेदार मिल गया। उसी लम्हे किले के बाहर फजर की आवाज़ की पहली आवाज़ गूंजी और कमरे की दीवार ज़ोर से लरज़ उठी। लेकिन जो चीज़ अब दीवार के पीछे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। फजर की अजान की आवाज़ पूरे किले में गूंज रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि अजान की आवाज़ जैसे ही कमरे तक पहुंचती वो मद्धम पड़ जाती, जैसे कोई उसे दीवारों के अंदर ही निकल रहा हो। एहसन ने लरजते हुए हाथ से अपना कैमरा उठाया। स्क्रीन दोबारा खुद ब खुद रोशन हो गई। इस बार लाइव रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, बल्कि एक पुरानी तारीख नज़र आ रही थी। 11 मई 1857। कैमरा किसी तंग सुरंग में आगे बढ़ रहा था। सुरंग के आखिर में एक जख्मी सिपाही दीवार से टेक लगा बैठा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने कैमरे की तरफ देखकर कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। अचानक वीडियो में पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। सिपाही का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। उसने फ़ौरन दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, हमने सिर्फ उसे छुपा दिया था। ये अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि वीडियो अचानक बंद हो गई। उसी लम्हे कमरे की एक दीवार पर लंबी सी दरार पड़ी। पत्थर टूटकर ज़मीन पर गिरने लगे। दरवाजे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। रामेश ने कांपती आवाज़ में कहा, सर ये किला खाली नहीं है। अचानक उस अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें रोशन हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा साया बाहर निकला। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जिस्म पर सदियों पुराना मुगल सिपाही का ज़रा था और हाथ में
जंग आलूदा तलवार। वो ना दौड़ रहा था ना चल रहा था, बल्कि खामोशी से उनकी तरफ सरक रहा था। एहसन ने हिम्मत करके टॉर्च उसके चेहरे पे डाली और उसका दिल जैसे रुक गया हो। वो चेहरा किसी मुगल सिपाही का नहीं था, वो एहसन का अपना चेहरा था, मगर कई 100 साल पुराना, गिर्द से अटा हुआ और आंखों की जगह स्याह खला। उसने आहिस्ता से तलवार उठाई और धीमी आवाज में कहा, हर पहरेदार आखिरकार वापस आ ही जाता है। उसी लम्हे पूरे कल्ले में एक जोरदार धमाका हुआ और फर्श उनके कदमों के नीचे से टूटने लगा। एहसन, रामेश और नहीम सीधे नीचे तारीकी में गिरने लगे, जहाँ शायद सदियों से कोई इंसान नहीं पहुंचा था। एहसन, रामेश और नहीम कई फीट नीचे गिर गए। गिर्द का एक घना बादल था और चंद लम्हे तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एहसन ने तकलीफ से कराहते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी फैली तो उनके सामने एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र किसी नक्शे, किसी किताब या किसी सरकारी रिकॉर्ड में था ही नहीं। ये एक ज़ेरे ज़मीन पथरीली राहदारी थी। दोनों तरफ लोहे के बड़े बड़े दरवाजे थे। हर दरवाजे पे जंग आलूदा जंजीरें लटक रही थी। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा खौफनाक थी, हर दरवाजे के ऊपर एक ही तारीख लिखी थी, 1739, 1803, 1857 और सबसे आखिरी दरवाजे पर 2026। एहसन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये तो आज का साल है, रामेश ने बमुश्किल कहा। इसी लम्हे आखिरी दरवाजे के पीछे से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटाया। चंद सेकंड खामोशी, फिर दोबारा, और फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, दरवाजा खोलो, मेरा वक्त खत्म हो गया है। नईम ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। एहसन ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक 2 सफ़ेद आंखें अंधेरे में खुली। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा सामने आया। वो कोई अजनबी नहीं था, वो रामेश था। लेकिन दरवाजे के बाहर भी रामेश खड़ा था। एहसन ने फ़ौरन अपने साथ खड़े रामेश की तरफ देखा। उसका चेहरा सर्द पड़ चुका था। वो लरजती आवाज़ में बोला, सर, मैंने कभी आपको नहीं बताया, 15 साल पहले मैं भी एक रात यहाँ नीचे आया था। एहसन ने हैरत से पूछा। उसके बाद रामेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अकेला वापस नहीं गया था। इतने में आखिरी दरवाजे के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी, इसे झूठ मत बोलने दो। उसी लम्हे तमाम दरवाजे एक साथ हिलने लगे। जंजीरें जोर जोर से बजने लगी और पूरी सुरंग में सैकड़ों कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई फौज अंधेरे में उनकी तरफ बढ़ रही हो। एहसन ने टॉर्च सामने की, लेकिन रोशनी में कोई नजर नहीं आया। सिर्फ एक बात साफ सुनाई दी, पहरा खत्म नहीं होता, सिर्फ पहरेदार बदलते हैं। और फिर सुरंग की आखिरी दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। उसके पीछे क्या था, ये देखकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। सुरंग की आखिरी दीवार मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी। अंदर एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन हॉल था, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। हॉल के दरमियान एक कदीम पत्थर का तख्त रखा था। उस पर मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं और उन जंजीरों के बीच एक पुराना गिर्द आलूदा फौलादी हेलमेट रखा था। तख्त के गिर्द सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं, मगर हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अचानक तमाम मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। हॉल मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। उसी लम्हे चारों तरफ धीमी आवाज़ आने लगी, पहले 1, फिर 10, फिर सैकड़ों, और सब एक ही जुमला दोहरा रही थी, नया पहरेदार, नया पहरेदार। एहसन ने कैमरा मजबूती से पकड़ लिया। उसने अंधेरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। कुछ लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने फौरन मुड़कर टॉर्च जला दी। वहाँ कोई नहीं था, मगर कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे दर्जनों साहे खामोश खड़े थे। उन सब के चेहरे एक जैसे थे और वो चेहरा एहसन का अपना था। अचानक तख्त पर रखा फौलादी हेलमेट आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उठने लगा। जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। चन चन चन। रामेश खौफ से चीखा, सर मत देखें। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद हवा में तैरता हुआ सीधा एहसन के सर के ऊपर आ गया। जैसे ही वो उसके सर को छूने लगा, पूरा हॉल एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। एहसन की आंखों के सामने एक के बाद एक अजीब मनाजिर आने लगे। सदियों पुराने सिपाही, खून आलूदा राहदारियां, बंद दरवाजे और हर दौर का एक आदमी जो इसी तख्त के सामने खड़ा था। फिर एक आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब सुनाई दी, तुमने खुद आना पसंद किया था। एहसन ने पूरी ताकत से चीख मारी, मैं यहाँ कभी नहीं आया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद अंधेरे से एक हंसी गूंजी।
پھر وہی آواز بولی، نہیں احسن، اس زندگی میں نہیں، مگر اس سے پہلے تم یہاں پہرا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ سنتے ہی احسن کے ہاتھ سے کیمرہ زمین پر گر گیا۔ اس کی اسکرین پر آخری منظر ریکارڈ ہوا۔ ہال کے دروازے میں ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ ان تینوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے روشنی میں قدم رکھا تو رامیش کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ شخص احسن نہیں تھا، وہ احسن کا 10 سال بعد کا چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اس نے صرف ایک جملہ کہا، ابھی بھی وقت ہے، اگر زندہ نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور اسی لمحے ہال کے تمام دروازے ایک ساتھ زور سے بند ہو گئے۔ ہال کے دروازے بند ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے پورا زیر زمین قلعہ سانس لے رہا ہو۔ پتھر کی دیواروں سے دھیمی دھیمی آوازیں آنے لگی، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ایسا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا کیمرہ اٹھایا۔ اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی، لیکن ریکارڈنگ ابھی بھی جاری تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ شخص جس کا چہرہ احسن سے 10 سال بڑا لگ رہا تھا ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میری بات غور سے سنو۔ احسن نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تم ہی ہوں، 10 سال بعد والا احسن۔ رامیش غصے سے بولا، یہ ناممکن ہے۔ وہ شخص خاموش رہا، پھر اس نے جیب سے ایک پرانی مٹی میں دبی ہوئی تصویر نکالی۔ احسن نے تصویر دیکھی، وہ اسی رات کی تھی۔ اس میں احسن، رامیش اور نہیم قلعے کے اندر کھڑے تھے، لیکن تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، 17 جولائی 2036۔ احسن کا جسم کانپنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا، کیونکہ یہاں وقت سیدھا نہیں چلتا۔ جو ایک رات تم یہاں گزارو گے، باہر شاید 10 سال گزر چکے ہوں۔ اتنے میں ہال کی دیواروں پر دراریں پڑنے لگی۔ ان دیواروں میں سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں آہستہ آہستہ انسان کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ درجنوں، پھر سینکڑوں سائے، سب کے ہاتھ میں پرانے ہتھیار تھے، اور سب ایک ہی سمت میں دیکھ رہے تھے، احسن کی طرف۔ پھر اچانک تمام سائے ایک ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ پورا ہال ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے اندھیرے کے بیچوں بیچ ایک بھاری آواز گونجی، نیا پہرے دار سامنے آئے۔ ہوا اچانک بند ہو گئی۔ پتھر کا تخت خود بخود روشن ہونے لگا۔ اس پر پڑا پرانا فولادی ہیلمٹ دوبارہ ہوا میں تھا، اور آہستہ آہستہ احسن کے سر کی طرف بڑھنے لگا۔ احسن نے پوری طاقت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں ڈھس چکے تھے۔ دور کھڑا مستقبل والا احسن زور سے چلایا، اگر یہ خود تمہارے سر پہ آ گیا تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ اور اسی لمحے ہال کی چھت سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز آئی۔ پتھر ٹوٹ کے نیچے گرنے لگے، اور تاریکی میں کسی نے پہلی بار زور سے کہکا لگایا۔ وہ کہکا انسان کا نہیں تھا۔ وہ کہکا اتنا بھاری تھا کہ پورا زیر زمین ہال لرز اٹھا۔ چھت سے مٹی اور پتھر گرنے لگے۔ احسن نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر وہ آواز اس کے کانوں میں نہیں، اس کے ذہن کے اندر گونج رہی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، اتنی خاموشی کہ تینوں کو اپنی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے پتھر کے تخت کے پیچھے اندھیرے میں ایک دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ یہ دروازہ پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ دروازے کے اوپر قدیم فارسی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا۔ اس کے نیچے اردو میں صرف ایک جملہ تھا، جو اندر جائے گا وہ اپنی سب سے بڑی حقیقت دیکھے گا۔ مستقبل والا احسن فوراً چلایا، نہیں، اس دروازے کو مت کھولنا، میں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ مگر جیسے کسی اندیکھی طاقت نے احسن کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو، وہ بے اختیار اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک لمبی تاریک راہداری تھی، دونوں طرف بے شمار دروازے تھے۔ ہر دروازے پہ نام لکھا تھا، احسن، رامیش، نہیم، اور اس کے بعد ایسے سینکڑوں نام جنہیں وہ جانتا تک نہیں تھا، لیکن سب کے نیچے ایک ہی لفظ لکھا تھا، لاپتہ۔ احسن نے کانپتے ہاتھ سے ایک دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف ایک پرانا ٹی وی رکھا تھا۔ ٹی وی خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک نیوز اینکر خبر پڑھ رہا تھا، آثار قدیم کے محکمے نے تصدیق کی ہے، 3 افراد جو لال قلعے میں رات کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے آج تک لاپتہ ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نیچے تاریخ چل رہی تھی، 27 جولائی 2026۔ احسن کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ یہ وہی تاریخ تھی جس رات وہ قلعے میں داخل ہوا تھا۔ اسی لمحے ٹی وی کی اسکرین بدل گئی۔ اب اس پر ایک CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا احسن، رامیش اور نہیم رات کے وقت قلعے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن صرف
2 लोग बाहर निकले। एहसन ने सांस रोक लिया। तीसरा कौन था? उसने गौर से देखा। वो बाहर ना आने वाला तीसरा शख्स नहीम नहीं था। वो एक लंबा खामोश इंसान था जिसके चेहरे पे पुराना मुगल सिपाही का नकाब था। और हैरत की बात यह थी किले के गेट पर खड़े तमाम गार्ड्स ने उसे देखा भी, मगर किसी ने उसे रोका नहीं। अचानक टीवी की स्क्रीन पर बर्फ सी छा गई और फिर एक जुमला उभरा, जो बाहर गया था वो इंसान नहीं था। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी ने बहुत आहिस्ता से दस्तक दी। फिर दोबारा, और एक मानूस आवाज आई, एहसन दरवाज़ा खोलो, मैं नहीम हूँ। लेकिन एहसन जानता था नहीम तो उसके साथ ही था। फिर दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था? दरवाजे पे दस्तक मुसलसल जारी थी। एहसन दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ बिल्कुल नहीम जैसी थी। एहसन ने गहरा सांस लिया। उससे दीवार पे लिखा वो जुमला याद आ गया, जो तुम्हें आवाज़ दे उस पर फौरन यकीन मत करना। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। चंद लम्हे बाद दस्तक बंद हो गई, मगर फिर एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के नीचे से नाखून रगड़ रहा हो। उसने आहिस्ता से नीचे देखा। दरवाजे के नीचे की बारीक दर्ज से एक पुराना जर्द कागज़ अंदर सरक रहा था। उसने कांपते हाथ से कागज़ उठाया। उस पर सिर्फ एक ही नक्शा बना हुआ था। ये लाल किले का नक्शा था, लेकिन उसमें एक ऐसी सुरंग भी बनी हुई थी जो मौजूदा नक्शों में मौजूद नहीं थी। नक्शे के कोने में सुर्ख स्याही से लिखा था, अगर जिंदा निकलना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले 7वें दरवाजे तक पहुंचो। उसी लम्हे कमरे का टीवी दोबारा खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शख्स बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था। वो सीधा कैमरे की तरफ देखकर बोला, मैं भी यही नक्शा लेकर आया था। मैं भी समझा था मैं बच जाऊंगा, लेकिन यहाँ रास्ते बदलते रहते हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़, वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, ये किला नहीं बल्कि वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वीडियो अचानक बंद हो गई। एहसन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकला। रामेश दीवार के साथ बैठा कांप रहा था, लेकिन नहीम वहाँ मौजूद नहीं था। नहीम कहाँ है? रामेश ने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, सर वो भी तो आपके पीछे गया था। उसने हैरत से कहा, मैं तो अकेला अंदर गया था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अचानक राहदारी के दूसरे सिरे से कदमों की आवाज़ आने लगी। टॉर्च की रोशनी सामने डाली तो एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा था। वो नहीम था, मगर उसके कपड़े मिट्टी और गिर्द से भरे हुए थे। चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख और उसके हाथ में एक पुरानी रजिस्टर बुक थी। वो करीब आकर धीमी आवाज़ में बोला, मुझे नीचे एक कमरा मिला था। इस रजिस्टर में पिछले 200 साल के तमाम पहरेदारों के नाम लिखे हैं। एहसन ने बेचैनी से रजिस्टर खोला। आखिरी सफ़े पर सिर्फ 3 नाम ताज़ा स्याही से दर्ज थे, एहसन, रामेश, नहीम। और इन तीनों नामों के सामने तारीख अभी लिखी जा रही थी, जैसे कोई नज़र न आने वाला हाथ कलम चला रहा हो। उसी लम्हे रजिस्टर का आखिरी सफ़ा खुद ब खुद पलटा। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बाहर जाएगा। और राहदारी के आखिर में कोई आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाना शुरू कर देता है। राहदारी में गूंजती तालियां। हर ताली के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारें करीब आ रही हों। एहसन ने टॉर्च उस समय घुमाई। रोशनी के दायरे में आहिस्ता आहिस्ता एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी कमर तक थी, लिबास गिर्द और मिट्टी से अटा हुआ और हाथ में एक पुरानी लालटेन। सबसे अजीब बात, उसका साया ज़मीन पर नहीं था। बूढ़े ने खामोशी से रजिस्टर की तरफ देखा और बोला, ये रजिस्टर कभी गलती नहीं करता। एहसन ने बेइख्तियार पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं इस किले का आखिरी मुहाफिज था और अब शायद आखिरी गवाह हूँ। रामेश ने हैरत से पूछा, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, इतने अरसे से कि अब साल गिनना छोड़ चुका हूँ। उसने रजिस्टर बंद किया और सरगोशी में कहा, तुम लोग गलत जगह पर नहीं आए, तुम लोग गलत रात को आए हो। एहसन कुछ समझ ना सका। बूढ़े ने लालटेन ऊपर उठाई। दीवार पर एक पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर धुंधले अल्फाज लिखे थे, हर 50 बरस बाद एक रात ऐसी आती है जब किला अपने तमाम राज वापस मांगता है। इतने में हॉल के दूसरे सिरे से भारी जंजीरों के घसीटने की आवाज़ सुनाई थी। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन बोला, देर हो गई। वो जाग गया। उसी लम्हे पूरी ज़मीन हिलने लगी, छत से गिर्द झड़ने लगी
और अंधेरे से एक बहुत ऊंचा साया उभरा। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके गले में दर्जनों जंग आलूदा चाबियां लटक रही थी, जो चलते वक्त आपस में टकराकर खौफनाक आवाज पैदा कर रही थी। वो साया किसी इंसान की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि खामोशी से जमीन पर सरक रहा था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, इसकी तरफ मत देखना, क्योंकि जिसने इसका चेहरा देख लिया वो फिर अपनी ही शक्ल भूल जाता है। एहसन ने नजरें झुका ली, लेकिन उसी लम्हे उसकी कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई और स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। एहसन ने जैसे ही एक नज़र स्क्रीन पर डाली, उसके हाथ से कैमरा छूट गया, क्योंकि उस साये का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एहसन का खुद का था, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो सिर्फ एक जुमला दोहरा रहा हो, तुम बहुत देर से वापस आए हो। एहसन के हाथ से कैमरा जोर से ज़मीन पर गिरा, लेकिन कैमरा टूटा नहीं। उसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी और उस पर वही साया मुसलसल मुस्कुरा रहा था। बूढ़ा मुहाफिज फौरन आगे बढ़ा, कैमरा उल्टा कर दिया और बोला, इसकी आंखों में मत देखो, ये इंसान को अपनी यादें भुला देता है। एहसन ने गहरा सांस लिया, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपना घर, अपनी माँ, हत्ता कि वो यहाँ क्यों आया था, सब कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगा। रामेश ने उसके कंधे को झंझोड़ा, सर खुद को संभालें। उसी लम्हे ज़ेरे ज़मीन हॉल में लगी तमाम जंजीरें एक साथ हिलने लगी और फिर हॉल के बीचों बीच रखी पत्थर की तख्ती आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। उसके नीचे एक गोल तारीक कुआं था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसके तह तक ना पहुंच सकी, मगर कुएं के अंदर दर्जनों लोगों के एक साथ सरगोशी करने की आवाज़ आ रही थी। नीचे आ जाओ, पैरा ख़त्म करो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एहसन ने बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। बूढ़ा मुहाफिज पूरी ताकत से चिल्लाया, रुक जाओ, ये वो जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मगर उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में दर्जनों हाथ कुएं के किनारे पे थे, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नईम खौफ से चीख उठा, सर वो ऊपर आ रहे हैं। अचानक पूरे किले में एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपर कहीं दूर फजर की दूसरी अजान की आवाज़ गूंजी, और जैसे ही अजान की आवाज़ ज़ेरे ज़मीन हॉल तक पहुंची, कुएं से निकलते तमाम हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। बूढ़े मुहाफिज ने फौरन एहसन का हाथ पकड़ा और कहा, बस यही वक्त है, अगर सूरज निकल आया तो किला अपना दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देगा। उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख बुलंद हुई कि पूरी ज़मीन हिल गई और कुएं की तारीकी में दो सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। कुएं की तारीकी में दो सुर्ख आंखें खुल चुकी थीं, पूरे ज़ेरे ज़मीन सुरंग लरज़ रही थी। बूढ़े मुहाफिज ने चीख कर कहा, एहसन, अगर जिंदा निकलना चाहते हो तो पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। तीनों पूरी ताकत से सुरंग की तरफ भागने लगे। पीछे से जंजीरों की आवाज़, भारी कदमों की गूंज और सैकड़ों सरगोशियाँ उनका पीछा कर रही थीं। रुक जाओ, पैरा भी खत्म नहीं हुआ, वापस आ जाओ। एहसन ने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक सामने दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बूढ़ा मुहाफिज मुस्कुराया, यही रास्ता है, दौड़ते रहो। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, सूरज की पहली किरण किले की दीवारों पर पड़ी। उसी लम्हे पीछे से एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई दी कि पूरा लाल किला गूंज उठा और फिर सब खामोश हो गया। कुछ देर बाद एहसन ने आंखें खोली। वो लाल किले के मरकजी दरवाजे के बाहर पड़ा था। उसके साथ रामेश भी था, मगर नईम कहीं नहीं था। पुलिस, सिक्योरिटी और आसार कदीम के एहलकार वहाँ जमा थे। सब यही पूछ रहे थे, तुम दोनों पूरी रात कहाँ थे? एहसन ने फौरन जवाब दिया, हमारा एक साथी भी था। नहीं, अफसर ने हैरत से कहा, नहीं, आप दोनों के अलावा तो किसी तीसरे शख्स के अंदर जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एहसन ने जिद की। उसने मोबाइल निकाला, तस्वीर देखी, मगर हर तस्वीर में सिर्फ वो और रामेश थे। नईम जैसे कभी उनके साथ था ही नहीं। चंद दिन बाद एहसन ने उस रात की तमाम वीडियोस कंप्यूटर में मुंतकिल की, पर वीडियो खाली थी सिवाय आखिरी 5 सेकंड के। उस आखिरी क्लिप में लाल किले का मरकजी दरवाज़ा बंद हो रहा था और दरवाजे के ऊपर फसील पर 3 साए खामोशी से खड़े थे। एक रामेश, दूसरा एहसन और तीसरा नईम। नईम ने आहिस्ता कैमरे की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर इशारा किया, वापस मत आना। उसी लम्हे वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गई। 6 माह बाद उसने कभी दोबारा उस वाक़े के बारे में बात नहीं की। एक दिन उसे डाक के ज़रिए
एक पुराना बगैर पते का लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक जंग आलूदा चाबी थी और एक मुख्तसर सा कागज। उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, पैरा ख़त्म नहीं हुआ, अगली बारी किसी और की है। एहसन ने फ़ौरन खिड़की से बाहर देखा। सड़क के दूसरी तरफ एक शख्स खामोशी से खड़ा था। उसने मुगल दौर के सिपाही जैसा लिबास पहन रखा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब उसने आहिस्ता से सर उठाया, एहसन के हाथ से वो चाबी गिर गई, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, एहसन का अपना था।